بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کا دنگل جاری ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم وقت دینے کا۔ اس وقت انتخابی عمل جاری ہے، انتخابی عمل کو سموتھ کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے؟ جی السلام علیکم۔ مجھے ویسے آپ کی آواز بہت ہی زیادہ کم آ رہی ہے، لیکن اس طرح ہے کہ کل بھی میری پریس بریفنگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تفصیلاً میں نے جو حکومتی اقدامات تھے اس حوالے سے ڈیٹیل جو تھی وہ میڈیا کو بتائی تھی۔ اچھا، ہم نے جو تھا علاقوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، ویری سینسٹیو اور نارمل۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ ابھی تک جو الیکشن کا پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ اسموتھلی جاری ہے، اور ٹرن آؤٹ، یہ دیکھیں ٹرن آؤٹ تو اس بات ہے وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ جو ایک اویئرنیس کیمپین حکومت کی طرف سے چلائی گئی تھی اسی مقصد کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ عوام پارٹیسپیٹ کریں الیکشن میں، الحمدللہ وہ اویئرنیس کیمپین کامیاب ہوئی ہے۔ آپ کی کیمپین کامیاب ہوئی۔ فرح عظیم شاہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے خرم شہزاد صاحب، سابق وزیر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے رپورٹر عبدالغنی کاکڑ بھی موجود ہیں جو کہ بیورو چیف ہیں کوئٹہ سے۔ میں خرم شہزاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت جیسے فرح صاحبہ نے کہا کہ بلوچستان حکومت کے بہترین انتظامات کی وجہ سے بڑی سموتھ پولنگ ہوئی، اچھا ٹرن آؤٹ رہا ہے، کتنی حد تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اور پھر کچھ جگہوں سے ابھی اطلاعات ہیں امن و امان کی خرابی کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرا، جہاں تک ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کی ہے، میں خود، میرا ووٹ سپی میں ہے۔ سپی آپ کو پتہ ہے کہ گرم ترین علاقہ ہے، اور میں خود یہاں پہ آیا ہوں اور مختلف پولنگ اسٹیشنز بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو لوگ اس وقت جو ہیں وہ گرمی کو بلا کر کے جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے بہت اچھا دیکھنے میں آیا ہے۔ لوگ جوک در جوک کھڑے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ جیسے رزلٹ نکلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرن آؤٹ کا فگر آئے گا تو وہ بہت بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو جیسے لوگ پہلے سوچ رہے تھے کہ گرم ترین علاقوں میں اس وقت جو ہے ووٹ کی شرح جو ہے وہ کم رہے گی۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے دور دراز علاقوں سے بھی آ رہے ہیں اپنے علاقوں میں، اور اپنے جو ان کے نمائندے ہیں ان کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا بہترین پولیٹیکل پروسیس ہے۔ اور انوائرمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومتی سطح پہ بہت اچھی ہے، اور ساری چیزیں بڑی بہترین قسم کی ویل آرگنائزڈ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبدالغنی کاکڑ، آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کچھ علاقوں میں اطلاعات سامنے آئی تھی، کیا اب صورتحال بہتر ہو چکی ہے؟ دیکھیں، جنرلی اگر بات کی جائے تو جو انتظامات جس طرح ترجمان حکومت بلوچستان نے بھی کوٹ کیا اس معاملے کو، میرے خیال میں یہ ایک انتہائی اہم ایک پیش رفت ہے کہ تمام تر جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی کوششوں کے باوجود انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ جو انتخابی عمل ہے اس وقت جاری ہے۔ اگرچہ اکا دکا واقعات تو ضرور رونما ہوئے ہیں، لیکن جنرلی اگر ہم اس کو دیکھیں اس صورتحال کو، تو جس طرح یہ ایک خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ حالات اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح حکومت دعوے کر رہی ہے، تو آج تو پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ انتہائی اچھے ماحول میں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اور جس طرح ملک خرم شہزاد صاحب نے بھی کوٹ کیا، جو دور دراز علاقے ہیں بلوچستان کے، ان علاقوں میں بھی جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بڑا اچھا دیکھا گیا ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ ہمیں جو اپڈیٹس ملی ہیں ان کے مطابق جو ووٹرز ہیں، اکثر ایسے ووٹرز جو ان علاقوں کے ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے ہیں، اور اب آخری جو یہ کچھ منٹس باقی ہیں اس کے دوران کچھ بہت ہی زیادہ ٹرن آؤٹ بڑا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے کہ جو لوگ ابھی تک اپنے حق رائے دہی کو استعمال نہیں کر سکے ہیں وہ اپنے ان پولنگ اسٹیشن کا رخ کریں، اور وہاں ایک بڑے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان میں کافی لوگوں کی لائنیں جو ہے دیکھی ہوئی وہاں پہ پائی جا رہی ہیں۔ اور ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کے طرح جو دیگر ووٹرز ہیں، خواتین ووٹرز بھی اس بار غیر معمولی طور پر رخ کر رہی ہیں، اور بہت زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھا گیا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک غیر معمولی صورتحال ہے بلوچستان کی۔ اس حوالے سے ایک مثبت پہلو ہے بلوچستان کا کہ عام دنوں میں تو جو میل ووٹرز تھے ان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، اس بار ان الیکشنز میں لوگوں نے، عام لوگوں کی طرح خواتین ووٹرز نے بھی زیادہ اس میں حصہ لیا ہے۔ ان کا نہ صرف ٹرن آؤٹ زیادہ رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ 132 خواتین امیدوار ایسی ہیں جو کانٹیسٹ کر رہی ہیں مختلف اضلاع میں، جن میں کولو ڈسٹرکٹ ایسا ہمارا
हमारा ज़िला है जहाँ पे ज़्यादा ख़वातीन कॉन्टेस्ट कर रही हैं जनरल नशिस्तों पर। तो मेरे ख्याल में ये यकीनन एक खुश आइंद बात है कि बलूचिस्तान में एक अच्छे अंदाज में, खूबसूरत माहौल में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली का ये जो अमल है ये पाए तकमील तक पहुंच रहा है। ये एक इंतहाई खुशउस्लूबी के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं। फराह अजीम शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन को कि वक्त दिया जाए, उस पर कुछ मामला थे, क्या उनको कंपनसेट कर लिया गया है? जी बिल्कुल, जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट थी इलेक्शन कमीशन रूल्स में उसे भी कर लिया गया था। डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस था। आप जानते हैं कि 34 डिस्ट्रिक्ट में से अभी ये 32 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो कोयटा और लसबेला में अभी डीलिमिटेशन का जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट करके फिर वहां भी इलेक्शन करवाए जाएंगे, और इसी तरीके से जो फंड्स थे फॉर द इलेक्शन प्रोसेस वो भी इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। यहाँ एक बड़ी अहम बात मैं आपसे करती चलूं, देखिए हुकूमत बलूचिस्तान, ये जो बल्दियाती इलेक्शन थे ये 2013 में हुए थे और अब ये 9 साल बाद हुए हैं और बड़ी कामयाबी के साथ हुए हैं। टर्न आउट बड़ा शानदार है और इसमें खवातीन पार्टिसिपेंट, बड़ी ये अहम बात है कि इस बार जो पार्टिसिपेंट फीमेल हैं वो भी, उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा है और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 100 से ज्यादा बल्कि खवातीन हैं। और तुर्बत के इलाके में और मकरान के इलाके में इसी तरीके से खवातीन कैंडिडेट्स बहुत आगे हैं। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो इख्तियारात हैं उसकी मुंतकिली जो है वो निचली सतह पे ज़रूर की जाए। और आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी थे कि अपने अपने इलाकों के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे होंगे वो जो एक इश्यूज होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की सतह है वहां पर पहुंचा सकें। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। खुर्रम शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो पहले खदशात रहे हैं, अब तो अमन अमान के साथ ये सूरत हाल पाया तकमील तक पहुंची है, क्या बल्दियाती इंतखाबात के अमल मुकम्मल होने से जो बलूचिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें ठहराव आएगा, बेहतरी आएगी, लोगों के मामलात हल हो सकेंगे? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आप ये देखिएगा कि ये जैसे अभी तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा कि इख्तियारात की जो है निचली सतह तक जो है मुंतकली, ये एक वो बड़ा प्रोसेस है जिससे आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के जो इस वक्त सियासी मामलात हैं और दीगर जो इश्यूज हैं बलूचिस्तान के, बहुत हद तक इसमें उसकी सोल्यूशन में बहुत हद तक मदद मिलेगी। और आप ये इस सारे प्रोसेस से, ये जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, आप देखेंगे कि अवामुन नास जो हैं अपने मसाइल के हल के लिए उनको जो है इमीडिएटली एक डोर रास्ता मिलता है, दरवाजा मिलता है जहां पे वो दस्तक दे के अपने मसाइल का हल करवा सकते हैं। और ये जो सारी पावर्स हैं जो निचली सतह तक जैसे जाती हैं, तो ग्रॉस रूट लेवल पे जब आप पावर को ट्रांसफर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारी चीजें जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी होती हैं, जो सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से भी जो हमारे ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं, उन सारी चीज़ों का ये एक तदारुक है। ये बहुत अच्छा एक अमल है, वो कि बड़ा एक लॉन्ग टर्म काफ़ी पीरियड बाद ये इनकाद हो सकता है इसका, बल्दियाती इलेक्शंस का, लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है इस वक्त ऑल ओवर बलूचिस्तान, जो हम इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे न्यूज़ के हवाले से देख रहे हैं। और खवातीन का जिस तरह इन्होंने जिक्र किया तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कि खवातीन का बड़े बड़े पैमाने पे इस वक्त टर्न आउट हो रहा है और नौजवान हमारी यूथ जो है वो, मैंने बड़ा एक चीज नोट की है कि यूथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। और ज्यादा इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो मैंने देखा है कि जो उम्मीदवार हैं उसमें यूथ का बहुत बड़ा इस वक्त शेयर है। और मैं समझता हूं कि अगर यूथ आती है आगे तो किसी भी इलाके की तरक्की के लिए यूथ को एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस वक्त बड़ा पॉजिटिव साइन है जो देखने में नजर आ रहा है। ठीक, अब्दुल गनी काकड़, आप क्या समझते हैं इस वक्त? एक तो ज़्यादातरीन सूरत हाल भी आप साथ साथ अपडेट हमें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अभी कहा गया कि टर्न आउट बहुत अच्छा है, तारीखी टर्न आउट है और सूरत हाल जो है वो उसको कंट्रोल करने के हवाले से सिक्योरिटी भी अच्छी है, ये उस कैंपेन का नतीजा है, सियासी शऊर में इजाफा हुआ है, ख़वातीन की तादाद में इजाफा हुआ है। आप क्या समझते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत की कैंपेन की वजह है या लोगों के अपने मामलात और मसाइल भी हैं जो हमें सियासी सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों में देखने में मिली, वो भी एक बड़ी वजह बनी है इस टर्न आउट की?
देखें, ये आपने बहुत अहम पहलू उजागर किया है। बुनियादी बात यह है कि बलूचिस्तान में चूँकि जो बुनियादी अवामी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने में साबका हुकूमत पर भी ये जो इल्ज़ामात थे ये आयद होते रहे कि वो डिलीवर नहीं कर सकी, गुड गवर्नेंस का फुकदान था, दीगर कई ऐसे मामलात थे जो कि आवाम की नज़र में दुरुस्त नहीं थे। आपने देखा कि हुकूमत पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद होते रहे। फिर जो अरकान असम्बली थे, वो जो अवामी नुमाइंदे बलूचिस्तान असम्बली में मसाइल उजागर करते रहे, उनकी भी जब भी बात हुई तो उन्होंने ये पहलू उजागर किया कि हुकूमत ने जिस तरह वादे किए थे वो मामलात उनको उसी जाविये से नहीं देखा गया। फिर इसी वजह से जो बुनियादी अवामी मसाइल थे वो हल होने से रह गए। और दूसरी एक वजह यह भी थी कि आपने देखा कि जो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली का मामला था, उसमें चूँकि कानून साजी का जो फुकदान था वो भी देखा गया। जिस तरह ये तवक्को की जा रही थी कि अवामी मसाइल हल होंगे, फिर उन अवामी मसाइल के हल के लिए जिस तरह इकदामात की ज़रूरत थी माजी में वो नहीं उठाए गए। आप देखें कि 2013 के बाद से जो बुनियादी अवामी मसाइल हैं उनको उस पैमाने पर एड्रेस नहीं किया गया है हुकूमती सतह पर जिस तरह उसकी ज़रूरत थी। तो अब ये एक खुशाइंद अमल है कि जब ये अमल पाए तकमील तक पहुँचेगा, जो अवामी नुमाइंदे यूनियन कौंसल्स के लेवल पर सामने आएंगे, तो ये उम्मीद की जा रही है अवामी हलकों की जानिब से कि वो जो बुनियादी अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कुछ मसाइल ऐसे ज़रूर हैं जिनके लिए हुकूमत को भी किरदार अदा करना होगा, ख़ासकर फंड्स की अजरा के हवाले से। और कुछ कानून साजी का जो अमल रुका हुआ था, तातुल का शिकार था, उसको अगर बेहतर बनाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये जो मामलात हैं इनमें काफ़ी बेहतरी जो है देखने में आ सकती है। और ख़ासकर इस हवाले से हुकूमती सतह पर जिन इक़दामात की ज़रूरत है, अगर उनको यकीनी बनाया जाए तो दूररस जो नताइज है उनकी तवक्को की जा सकती है। अच्छा फराह अजीम साहब, इसी पर जैसे अभी गनी काकड़ ने भी कहा, खुर्रम शहजाद साहब ने भी कहा है कि ज़ाहिर है सूरत हाल तो खुशउस्लूबी के साथ आगे बढ़ रही है, मगर जो रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपकी जानिब से, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से, उसमें आपने एक इंदिया दिया इब्तिदा में। डिमार्केशन का एक बड़ा मामला था, कानून साजी भी एक बड़ा मामला है, जो लूप होल्स रह गए हैं, क्या आने वाले दिनों में वह सूरत हाल बेहतर हो सकेगी इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद? ज़ाहिर है इस दौरान ऐसे इंतखाबात हो रहे हैं जब अभी तक ये लूप होल्स मौजूद हैं। फराह अजीम शाह साहबा, फराह अजीम शाह साहबा तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बरसत मौजूद थी और हमारा रब्ता जो है उनसे मुनक़ता हुआ है। जैसे रब्ता बहाल होता है उनसे सवाल करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, यही सवाल आपके सामने रखता हूं मैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि लूप होल्स हैं। देखें, जब भी एक तातुल के साथ कोई प्रोसेस को आप पाया तकमील की तरफ लेकर के जाते हैं तो उसमें लूप होल्स तो रहते हैं। देखें, ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, लूप होल्स भी रहते हैं, लेकिन आप सबसे पहला ये देखें कि इस वक्त सोच क्या है। सोच ये है कि जी इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली, ये सोच है। यकीनन इस सोच में पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू आते हैं, लेकिन हमको हमेशा तस्वीर का मस्बत पहलू देखना चाहिए। आप इसको फोकस कीजिए कि जो इस वक्त निचली सतह पे इख्तियारात के इंतकाल का सिलसिला शुरू है, ये इंशाअल्लाह ताला जैसे कंप्लीट होगा और जब लोग हकीकी नुमाइंदे लोगों के मसाइल को तदारुक के लिए आएंगे, उनका हल और सदेबाब लेकर के आएंगे, तो ये जो इस वक्त लूप होल्स हैं ग्रेजुअली वो वक्त के साथ साथ उसकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसको यकीनन मुझे उम्मीद है कि वो इसको दुरुस्त भी करेगी। और आइंदा आने वाले दिन जो है, मैं समझता हूँ कि आज की निस्बत जो क्वेश्चंस हमारे ज़हनों में उठ रहे हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगी। बड़ी अच्छी बात आपने की कि पॉजिटिव पहलू को सामने रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ इम्प्रूव करने के लिए निशानदेही भी यकीनी तौर पर होती है कि वो सूरत हाल बेहतर हो जाए अगर कुछ लूप होल्स का भी जिक्र हो। और इस हवाले से ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है कि बलूचिस्तान में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली जो है वो बड़े स्मूथ तरीके से हो रही है। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल जारी है और पोलिंग का वक्त खत्म होने के करीब है। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी काकड़, आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके पास? देखें, इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे इस वक्त ये अमल मुकम्मल हो चुका है। जो लोग वहां मौजूद हैं उनको इस वक्त वहाँ पोलिंग स्टेशनों से मुतलका अमले की जानिब से निकाला जा रहा है ताकि जब वक्त मुकर्ररा ख़त्म हो तो फिर काउंटिंग का जो सिलसिला है वोटों का वो शुरू किया जा सके। लेकिन अक्सर इलाके ऐसे भी हैं जहां अब भी कसीर लाइनें लोगों की लगी हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आखिरी लम्हात में वो अपने जो वोट हैं वो कास्ट कर सकें। जिस तरह टर्न आउट हमने पहले भी बताया, मुख्तलिफ जो इलाके हैं बलूचिस्तान के इन 32 अजला में, वहाँ से जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन जो सूरत हाल है वह देखने में मिली है।
टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है, ख़ासकर ख़वातीन का जो है ये देखा गया है कि उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा इस इंतखाबी अमल में वो शिरकत कर सकी हैं। और अब भी जो मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें इतलात मौसूल हुई हैं जहाँ पे इस वक्त वोटर्स इंतज़ार में है कि वो अपना वोट अब भी कास्ट करें, उनमें ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद शामिल है। सुबह के अवकात में कुछ टर्न आउट कम था, लेकिन वक्त के साथ ही फिर इसमें तेज़ी देखने में आई और इस वक्त पुरअमन तरीके से ये जो अमल है ये जारी है। मुख्तलिफ़ इलाकों से जो मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए, उनके अलावा कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या इस वक्त किसी भी इलाके से रिपोर्ट नहीं हुआ है। कोशिश तो ज़रूर की गई अमन पसंद जो लोग हैं उनकी जानिब से कि ये मामला खुश असलूबी के जानिब वहाँ पे मूव कर सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सियासी जमातों के कारकुन थे, उनकी जानिब से इंतखाबी अमल में मुख्तलिफ शिकायत की बुनियाद पर फिर मुदाखलत की भी कोशिश की गई, जिनमें बाद में मुतलका जो ज़िली इंतज़ामिया के लोग थे उनकी मुदाखलत की वजह से वो सूरत हाल वहाँ पर बेहतर बनाई गई। कुछ तसादुम के वाक़यात भी मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल खुश असलूबी के साथ इस वक्त तक जारी है और पाए तकमील तक पहुँचने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि जो लोग जब ये वक्त ख़त्म होगा अगर वो पोलिंग के अंदर मौजूद होंगे, पोलिंग स्टेशनों के अंदर, तो उनको ये मौका फराहम किया जाएगा कि वो अपने वोट जो हैं उसके बाद भी कास्ट कर सकें कुछ देर तक। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये सहूलत मुयसर होगी जो पोलिंग स्टेशनों के अंदर मौजूद होंगे। अब्दुल गनी काकड़ साहब हमारे साथ रहिएगा। साबिक सूबाई वज़ीर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ब्रेक से पहले जैसे लूप होल्स का भी जिक्र हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली हो रही है और स्मूथ अमल जो है वो चल रहा है। ये बलूचिस्तान हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके साथ साथ जो कंसर्न्स थे उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें, ज़ाहिर है बड़ी सियासी जमातें बलूचिस्तान की शामिल हैं, खुद बलूचिस्तान हुकूमत डिले चाह रही थी और उसमें ज़ाहिर है जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मामला था जिसका जिक्र अभी अब्दुल गनी काकड़ साहब ने भी किया, उसके लूप होल्स का जिक्र हो रहा था कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली तो तब मीनिंगफुल वे में होगी ना जब जो लोकल गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में जब इलेक्ट हो जाएंगे वो बाख्तियार भी होंगे। जी गनी साहब ने भी इसी हवाले से जिक्र किया। आपकी बात बजा है। इस वक्त के जो निचली सतह पे इख्तियारात की मुंतकली का जो अमल है जब बाइख्तियार होंगे तो वो डिलीवर कर सकेंगे। लेकिन आप एक चीज को और भी यहाँ पे देखिएगा कि मेरी नज़र में इस वक्त आप देखें कि जब भी कोई अच्छे फैसले किए जाते हैं तो वो फासले कम कर देते हैं। तो बलूचिस्तान में अवाम में एक मुस्तकिल जो है वो एक महरूमी की फिजा थी। ये जो बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद करवाया गया है इससे जो वो महरूमी की एक एहसास था वो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक लोगों में कम हुआ है और लोग तसव्वुर करते हैं और लोगों को गुमान गालिब है कि इस वक्त जो ये बल्दियाती इलेक्शंस का अमल है ये जिस तरह ही मुकम्मल होगा तो बहुत हद तक जो उनके मसाइल हैं उनका वो हल तलाश कर सकेंगे अपने वो मुंतखब नुमाइंदों की सूरत में, और उनकी जो मसाइल का हल है वो आसानी के साथ, तो मतलब आप उसको ये कह लीजिए कि फर्स्ट डोर स्टेप पे उनको जो है सोल्यूशन मिल सकेगा। अच्छा, इसी पे यही खुर्रम शहजाद साहब, सॉरी टू कट यू, यही मेरा सवाल है, क्या लोगों को अपने मुंतखब नुमाइंदों के दरवाज़ों पर सोल्यूशन मिल सकेगा जबकि वो बाख्तियार अगर नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था और अभी कानून साजी के अमल में भी अभी मामलात मौजूद हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो ज़ाहिर है आमतौर पर ये होता है कि फिर मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। क्या इसके लिए कोई बलूचिस्तान हुकूमत आगे बढ़ेगी अब? जी देखिए, जिस हद तक वो बाइख्तियार हैं उस हद तक तो रिलीफ मिलेगा। देखिए, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है। दूसरा, यहाँ पे मैं एक चीज और जिसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, जो कि बहुत अहम चीज है। आप ये देखिएगा कि इसमें इंसान की जिबिल्लत के अंदर होता है, जब एक शख्स जीतता है एक शख्स हारता है, तो जो हारने वाला होता है वो बड़ा उस वक्त जो है ना अपने वो आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म के मामलात होते हैं। मैं समझता हूं कि आपके चैनल के तवज्जुह से इस वक्त ये बड़ा एक सॉफ्ट मैसेज जाना चाहिए सबको कि जो हारने वाले हैं वो अगली दफा के लिए कोशिश करें और जो जीतने वाले हैं वो मोहब्बतों का दरवाजा खोल करके सबको साथ लेकर के चलें। मतलब अखुवत वाला दरवाजा जो है वो खुला रहना चाहिए, ना कि नफरतों का दरवाजा खुला होना चाहिए। ठीक है, सियासत में बातचीत का और मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए, ये सियासत का हुस्न है। हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान
خان صاحب نے. وزیر رضا خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. کیا سمجھتے ہیں آج بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا عمل بڑے سموتھ انداز میں آگے بڑھا ہے, کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ یہ بڑا اچھا ایک فیصلہ ہے کہ ایک خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے تھے اور آج بلوچستان میں بھی یہ عمل اپنی تکمیل تک پہنچ رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور سندھ جو ہیں اس معاملے میں ابھی تک ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, اور اسلام آباد میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن بلدیاتی ہونے ہیں اور اس کی ڈیٹ بھی دی گئی تھی, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے اور ان کے نتائج جو آئیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے عوام کی سوچ کس طرف ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. منیر خان صاحب, آپ نے سندھ کا, پنجاب کا, اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا حوالہ دیا, وہاں نہیں ہو پائے. آپ کے علم میں ہے بلوچستان گورنمنٹ نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست کی تھی کہ ڈیلے کیا جائے, مگر اس کے باوجود وہاں ہو پائے ہیں. کیا وجہ ہے یہاں پہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, یہ جو ہماری متحب صوبائی اور وفاقی قوتیں ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلدیاتی نظام لانے میں, کیونکہ فنڈ تقسیم ہو جائیں گے اور اختیارات تقسیم ہو جائیں گے. یہ ہمارے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات کا مرکز انہی تک محدود ہے اور عوام ان کے پیچھے گھومتے پھرتے رہیں, نہ کہ وہ اپنے علاقوں میں متحد نمائندوں کے ذریعے مسائل حل کر سکیں. وہ چاہتے ہیں گلی نالی اور پانی کی فراہمی, نکاسی آب, سب کام وہ کریں اور لوگ ان کی طرف دیکھیں تاکہ وہ اپنے ووٹ پکے کر سکیں. انہیں عوام کے مسائل سے اور بلدیاتی نظام سے کوئی غرض نہیں ہے. جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاکڑ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پولنگ کا عمل جاری ہے, کچھ ہی دیر میں ظاہر اس کا وقت ختم ہوگا اور اس کے بعد پھر آگے کا سلسلہ بڑھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں میجورٹی آف دی پولیٹیکل پارٹیز ان الیکشنز کے حوالے سے کتنی کنونسڈ ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ بہت اہم پہلو ہے. جس طرح محسن رضا صاحب نے نشاندہی کی, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا یہ جو عمل ہے اس کو خوش اسلوبی سے یہاں تک پہنچانے میں میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اور سیاسی جماعتیں بلوچستان کی خاص کر اگر میں بات کروں تو یہاں کی جو وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ایک کثیر اکثریت موجود ہے یا جن کی سٹریٹ پاور ہے بلوچستان میں, ان سیاسی جماعتوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا جو عمل ہے یہ یقینی بنایا جائے تاکہ لوگ ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ جب عوامی نمائندے بلوچستان اسمبلی تک خاص کر اگر جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے جو توقعات رکھتے ہیں ان پہ وہ اس لیے پورا نہیں اترتے کہ ان کے جو فنڈز ہیں وہ بر وقت ریلیز نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ جام کمال کی جب حکومت تھی بلوچستان میں تو ان کے خلاف سب سے زیادہ جو لوگوں کی موقف جو سامنے آیا اعتراض کے حوالے سے وہ یہی تھا کہ چونکہ بلوچستان میں اقدامات تو کیے جا رہے ہیں لیکن ان اقدامات کی وجوہات اس لیے سامنے, نتائج اس لیے سامنے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ حکومت کی جو دلچسپی ہے وہ فنڈز کی ریلیز کے حوالے سے اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کی توقع کی جا رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ جو پی ایس ڈی پی میں مختلف سکیمات شامل کی گئی, ان سکیمات کو دیکھتے ہوئے پھر جب اعتراضات سامنے آئے مختلف عوامی نمائندوں کے تو ان میں بنیادی جو ایک ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ حکومت فنڈز ریلیز نہیں کر رہی ہے. عبدالغنی کاکڑ صاحب, فنڈ ریلیز کرنا تو بات کا معاملہ ہے, کیا یہ پاورز ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے یا کانسٹیٹیوشن 140 جس کا کہتا ہے, جس کا ثنا خان صاحب بلوچستان اسمبلی میں بار بار ذکر کرتے رہے ہیں, وہ امپاور کرتا ہے؟ ریلیز کا معاملہ تو بعد میں آئے گا. دیکھیں, یہ پہلو بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں بھی ہیں لیکن جب ان چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر جا کے کاکڑ صاحب یہی سوال میں ذرا خرم شہزاد صاحب کے سامنے بھی رکھوں, وقت ہمارا کم رہ گیا. خرم شہزاد صاحب, یہی سوال آپ کے سامنے, کیا امپاور کرتا ہے؟ فنڈز تو بعد میں ریلیز ہوں گے, کیا لوگوں کی نالیاں پکی ہو پائیں گی, کھمبا لگ پائے گا, ان کے مسائل حل ہو پائیں گے, فنڈز ان کے پاس ہوں گے؟ جی, اس پہ تو میں یہ کہوں گا کہ جو ایک سفر بہت عرصے سے رکا ہوا تھا وہ اگر سفر شروع ہوا ہے
तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। जो पावर्स उनके हाथ में इस वक्त आयन उसको इख्तियारात देता है, इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम इसको वो उनको इख्तियारात के मद में इजाजत देता है, वो कम से कम अपने उनके उस दायरे के अंदर रहते हुए तो किसी हद तक अवाम की खिदमत कर सकेंगे। सही। और लोगों की जो एक उम्मीद है वो किसी हद तक जो लोग आगे बढ़ी है, हौसला अफजाई हुई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, साबिक सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ मोहसिन रज़ा खान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, बलूचिस्तान के 32 अजला में पोलिंग जो है वो जारी है, इलेक्शन का दंगल जारी है और पोलिंग का वक्त जो है वो अपने अख्ताम के करीब है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि जो लोग 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उनको वोट का और हक राय दही का वक्त जो है वो मजीद दिया जाएगा।